हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम लोग सेमीकंडक्टर चैप्टर में पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। सो लेट अस स्टार्ट विद दैट। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज आल्सो नोन एज impure semiconductor. Why it is called impure semiconductor? Because we are going to dope this semiconductor. This is also known as impure semiconductor. Why this is called impure semiconductor? Because we are going to add some additional atoms to that pure semiconductor, or that additional atom is known as impurity atom. So before proceeding and discussing about impurity and all those, let us first discuss about extrinsic semiconductor. So how we define it? It is a semiconductor. It is a semiconductor in which the number density of holes are not equal to the number density of electrons. बच्चों, यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना है आपको कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वैसे सेमीकंडक्टर को कहते हैं जिसमें कि नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स जो है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होता है। बच्चों, यहाँ पर आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि व्हाट इज नंबर डेंसिटी ऑफ होल और नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट per unit volume, that is called number density of electron, and number of holes present per unit volume of a given semiconductor is called number density of hole. And we have discussed these 2 points in earlier class. We denote number density of electron as Ne and number density of hole by Nh. This is number density of holes, electron. This is number density of electron, and this one is number density of hole, number density of holes. बच्चों, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जैसा कि हमने डेफिनेशन में भी लिखा है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है नंबर डेंसिटी ऑफ होल के बराबर नहीं होता है। सो फॉर extrinsic semiconductor number of electron or electron density is not equal to hole density, number density of hole. So अगर ये equal नहीं होता है बच्चों, तो there may be 2 possibility. One possibility क्या हो सकता है, या तो number density of electron जो है वो ज्यादा होगा नंबर डेंसिटी ऑफ होल से। दिस इज फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि नंबर डेंसिटी ऑफ होल जो है वो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा। सो सेकंड पॉसिबिलिटी इज नंबर डेंसिटी ऑफ होल इज ग्रेटर देन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों, अगर यह कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इट मींस यहां पर मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। सो इन दिस टाइप ऑफ मटेरियल मेजॉरिटी कैरियर्स और चार्ज कैरियर कौन होगा? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा? विल बी इलेक्ट्रॉन एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा बच्चों? यहां से लिख रहे हैं, एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होगा वह होल्स होगा। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल होगा, होल्स। सो इफ वी डिस्कस अबाउट दिस टाइप, वी आर राइटिंग हियर ऑन दिस टॉप। सो सेकंड केस, इफ नंबर डेंसिटी ऑफ होल इज ग्रेटर देन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट मींस होल का जो है प्रेजेंस, जो होल की नंबर्स है, नंबर ऑफ होल्स प्रेजेंट इन द गिवन सेमीकंडक्टर वह ज्यादा है,
so hole will be more as compared to electron, so we are writing majority carrier यहाँ पे कौन हो जाएगा बच्चों, majority carrier और charge carrier will be holes, and minority charge carrier will be electrons. So this is the basic fundamental information related to extrinsic semiconductor, and depending on the carrier concentration, whether holes are majority or electrons are majority charge carrier, extrinsic semiconductor are classified into two types. One is called under this condition where electron density is more as compared to hole density, this is called n-type semiconductor. So this forms n-type semiconductor. This is called n-type semiconductor, and where holes majority is more as compared to electron, so this type of semiconductor is known as p-type semiconductor. So in extrinsic conductor, why we are calling this one as impure semiconductor? The answer to the question is, let us discuss that. बच्चों इससे आगे बढ़ने से पहले you can stop or pause the video and note down. You can take running notes and moving forward. यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अब कि how extrinsic semiconductor, why or how extrinsic semiconductor is also known as impure semiconductor. बच्चों इसे impure semiconductor इसलिए कहते हैं क्योंकि impure semiconductor इसलिए कहते हैं क्योंकि this is formed by the process of doping of a pure semiconductor. Suppose we have a pure semiconductor. Why it is called impure semiconductor? Question mark. So suppose we have a pure semiconductor. So अगर हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर है तो प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होगा बच्चों, एक सिलिकॉन, अगर मैं सपोज यह सिलिकॉन का बना हुआ है तो एक सिलिकॉन एटम जो होगा बच्चों वो 4 सिलिकॉन के साथ जुड़ा होगा कोवलेंट बॉन्डिंग के द्वारा, बिकॉज सिलिकॉन भी टेट्रावेलेंट है। सिलिकॉन की जो एटॉमिक नंबर होती है वो क्या है, 14 है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों, 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p2. So 2 plus 2 4 plus 6 10 plus 2 12 plus 2 14. So what is the valence electron? So valence electrons equal to 4. So valence electron 4 है, मीन्स एक सिलिकॉन जो है, अगर हम यहाँ पर सिलिकॉन को बनाए तो एक सिलिकॉन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये डॉट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रॉन। सो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बच्चों। तो या अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए या किसी दूसरे सिलिकॉन के साथ या किसी दूसरे सिलिकॉन और या सिलिकॉन भी किसी दूसरे सिलिकॉन एंड दिस वन लाइक दैट, ये बॉन्डिंग बनाएगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा और इस तरह से ये अपने स्टेबिलिटी को ऑक्यूपाई करेगा। अगेन दिस सिलिकॉन will be attached with 4 silicon. This one will be attached with 4 silicon atoms, and in this way he will satisfy his bonding structure, and likewise the entire pure semiconductor will be formed. This is called pure semiconductor, जिसमें केवल एक ही टाइप के एटम प्रेजेंट हो। प्योर सेमीकंडक्टर किसको कहेंगे बच्चों, जिसमें केवल एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट हो। जैसे कि यहाँ पर ये प्योर सेमीकंडक्टर क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि इसमें केवल और केवल सिलिकॉन के ही एटम्स प्रेजेंट हैं। अगर हमने इसमें कोई एडिशनल एटम को ऐड कर दिया इस पूरे स्ट्रक्चर में, सपोज हम यहाँ पर कोई एडिशनल एटम्स को ऐड कर रहे हैं, एडिशनल एटम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एडिशनल एटम्स अगर हम ऐड कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं बच्चों, तो ये जो प्योर सेमीकंडक्टर है दिस विल बिकम इम्प्योर सेमीकंडक्टर। और किसको प्लस कर सकते हैं, सो वी कैन ऐड इम्प्योरिटी एटम। व्हाट इज दैट, इम्प्योरिटी एटम, जिसको कहते हैं यहाँ पर डोपिंग प्रोसेस। जब हम किसी भी
जब हम किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी एटम्स को ऐड करते हैं, then this will become impure semiconductor, and this process is called adding of impurity atom to a pure semiconductor is called doping. So let us write that point. Again I will suggest you can stop this video and you can note down, and you can pause the video and you can note down moving forward. बच्चों यहाँ पर हम लोग डोपिंग को भी डिफाइन कर देते हैं. व्हाट इज डोपिंग? सो इट इज अ प्रोसेस in which we add impurity atom to a pure semiconductor. It is a process in which impurity atoms are added to a pure semiconductor in order to obtain extrinsic semiconductor or impure semiconductor. So बच्चों impurity atom क्या होता है? impurity atom जो है बेसिकली एडिशनल एटम होता है जिसे हम यहाँ पर ऐड करते हैं, और यह बेसिकली दो तरह का होता है. इम्प्योरिटी एटम आर ऑफ टू टाइप. वन इज कॉल्ड ट्राइवेलेंट एंड अदर वन इज कॉल्ड पेंटावेलेंट. वन इज कॉल्ड ट्राइवेलेंट एंड अदर इज कॉल्ड पेंटावेलेंट. सो ट्राइवेलेंट मींस क्या? जिसकी वैलेंसी जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? +3, और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? दिस विल बी +5. सो यहाँ पर ट्राइवेलेंट में एल्यूमिनियम है, और पेंटावेलेंट में बच्चों यहाँ पर फॉर एग्जांपल फास्फोरस कंसीडर कर सकते हैं. सो दीज आर कॉल्ड इम्प्योरिटी एटम्स. अच्छा बच्चों, जब हम इसे ऐड करेंगे प्योर सेमीकंडक्टर में तो +3 इलेक्ट्रॉन आएगा. तो कोई भी जैसे कि यहाँ पे एल्यूमिनियम एटम को ऐड किया तो एक एल्यूमिनियम जब इस स्ट्रक्चर में आएगा तो 3 इलेक्ट्रॉन के साथ आएगा और एक डेफिशिएंसी रहेगी. अगर दूसरा एल्यूमिनियम आएगा तो फिर 3 इलेक्ट्रॉन होगा और एक डेफिशिएंसी होगी. तो एक एल्यूमिनियम जो है वो 3 सिलिकॉन के साथ जुड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक डेफिशिएंसी रह जाएगी. सो यह अनपेयर्ड, यहाँ पर यह जो है डेफिशिएंसी रह जाएगा, जिसको होल्स कहते हैं. दिस डेफिशिएंसी इज टर्म्ड एज होल्स. यहाँ भी होल्स रह जाएगा बच्चों. सो जैसे जैसे एल्यूमिनियम का कॉन्सेंट्रेशन इस प्योर सेमीकंडक्टर में हम बढ़ाते जाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ डोपिंग, वैसे वैसे होल्स का मेजॉरिटी बढ़ता चला जाएगा. एक एल्यूमिनियम के साथ एक होल अटैच होगा. सो इस तरह से यह जो प्योर सेमीकंडक्टर था, नाउ दिस विल बिकम इम्प्योर सेमीकंडक्टर, एंड वेयर वी विल फाइंड मेजॉरिटी कैरियर एज होल एंड माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन. लाइकवाइज बच्चों, अगर हम ट्राइवेलेंट की डोपिंग ना करके अगर पेंटावेलेंट की डोपिंग करें, सपोज यहाँ पर सिलिकॉन को हम लोग दोबारा रिड्रॉ कर लेते हैं. एक सिलिकॉन दूसरे सिलिकॉन के साथ इस तरह से जुड़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर ये बॉन्ड बना हुआ है. अगेन दिस सिलिकॉन विथ 4 सिलिकॉन. लेट अस ड्रॉ दिस डायग्राम दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स. यहाँ पे अगेन एक सिलिकॉन को ऐड कर लेते हैं. सो दिस वे वी कैन ड्रॉ. Again this one will be attached with 4. So अगर हम इस स्ट्रक्चर को कंसीडर करें बच्चों, अगेन दिस इज अ प्योर सेमीकंडक्टर, और अगर इसमें हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम को ऐड करेंगे, इफ यू ऐड पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम +5 इलेक्ट्रॉन विल कम विथ 1 पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम. सपोज फास्फोरस को ऐड किया, फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है. तो 4 इलेक्ट्रॉन जो है 4 सिलिकॉन के साथ जुड़ जाएगा, और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों, दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस स्ट्रक्चर में रह जाएगा, जिसको कि हम अनबाउंड इलेक्ट्रॉन कहते हैं. वो किसी के साथ बाउंडिंग नहीं बनाएगा. दिस इज कॉल्ड अनबाउंडेड इलेक्ट्रॉन, एंड दिस विल रिमेन इन स्ट्रक्चर एट द डोनर लेवल. अगर हम एनर्जी बैंड डायग्राम देखें, सो दिस इज अ कंडक्शन बैंड, दिस इज वैलेंस बैंड. सो ये डोनर लेवल का फॉर्मेशन करेगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा. दिस इज डोनर लेवल.
ये इलेक्ट्रॉन्स जो है बच्चों, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है एक फास्फोरस के साथ, उसे ही हम अनबॉन्ड या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं। तो जैसे जैसे फास्फोरस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे इस प्योर सेमीकंडक्टर में बाय द प्रोसेस ऑफ डोपिंग, वैसे वैसे क्या होगा बच्चों, एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बढ़ते चला जाएगा। मीन्स क्या, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू होल डेंसिटी, एंड दिस विल फॉर्म एन टाइप सेमीकंडक्टर। सो this will become as a result of doping, this will become impure. So by saying impure semiconductor we mean doping, or what kind of doping? Significant doping. बच्चों significant doping क्या है? significant doping क्या है? significant doping कहने का मतलब यह है, doping कहने का मतलब है impurity atom ऐड किया गया है। कहां पर ऐड किया गया है? तो प्योर सेमीकंडक्टर में, चाहे ट्राइवेलेंट हो या पेंटावेलेंट हो, चाहे पी टाइप हो या एन टाइप हो, जब भी हम प्योर सेमीकंडक्टर में डोपिंग करेंगे तो प्योर सेमीकंडक्टर जो है वो इम्प्योर बन जाएगा, जिसे हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। और दो प्रकार का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, एन टाइप एंड पी टाइप। सिग्निफिकेंट डोपिंग को हम लोग डिफाइन कर रहे थे। सिग्निफिकेंट डोपिंग में क्या होता है बच्चों, जो डोपेंट एटम्स है या इम्प्योरिटी एटम है उसकी मेजॉरिटी ज्यादा होगी और एक्सेस अमाउंट में इसको प्योर सेमीकंडक्टर के साथ मिलाया जाएगा, लाइक मे बी ट्राइवेलेंट, मे बी पेंटावेलेंट। और इनसिग्निफिकेंट डोपिंग मींस व्हाट, हमने बहुत ज्यादा अमाउंट में मे बी ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट या एग्रीगेट इम्प्योरिटी एटम की बात करें तो वो सिग्निफिकेंट अमाउंट में या मेजर अमाउंट में नहीं मिलाया गया है, देन वी कॉल दैट इनसिग्निफिकेंट डोपिंग। So I hope in this video you got each and every concept. बच्चों we will discuss next concept in the upcoming video. But at this stage I want to suggest to my all viewers and to my all students, those who are watching me, I will try to upload like this video and more conceptual video. I will keep on working on all the topics whatever we are discussing, and I will try to provide you a better quality and a better knowledge of the subjects whatever I am trying to give you. So try to be motivated and try to attend all the video, try to watch all the videos regularly. Thank you and thank you.